Hello friends, welcome back. This is Raj Singh. This is the unit first, chapter 2, Understanding Secularisms. This is the civics class 8th, chapter 2nd. On that whole video, we have to be understand about secularisms. धर्म निरपेक्षता. Understanding secularisms mean धर्म निरपेक्षता की समझ. धर्म निरपेक्षता की समझ. In that chapter you have to be discusses about the secularisms in Indian secularisms, what is the important to separate religions from the state, and the about of the American USA secularisms we have to be understand it on that video. Now let's start the chapter. So first point is that of history provide us. Now this is the first whole that in which that we have to be discusses on two that firstly we have understand. History provide us many example of discrimination in Christian grounds religions. Of you have several millions of. The first paragraph tell about the several millions of killed the man Hitler Germany and who several millions of people were killed. Several of millions. शायद आपने पढ़ा होगा जर्मनी में यहूदियों के पर किस तरह के अत्याचार किए गए. वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था. लेकिन अब यहूदी धर्म के मानने वाले इजराइल में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है. सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है. न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं. फर्स्ट चैप्टर दे हैव टू टेल अबाउट जर्मनी मैसकेयर हिटलर. दे हैव द ज्यूज यहूदियों को किस तरह ने इसने मरवा दिया था. नाउडेज ज्यूज स्टेट ऑफ इजराइल मोन मुस्लिम क्रिश्चियन. आज के समय में यहूदियों धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक के साथ जो यहूदी को मारने वाले मुस्लिम और ईसाई हैं वह अपने ही जैसे कि जो नॉन मुस्लिम हैं और नॉन क्रिश्चियंस हैं उनको साथ भेदभाव कर रहे हैं. उनको सार्वजनिक प्राइवेट गवर्नमेंट प्लेस सार्वजनिक पे आने की अनुमति नहीं दी गई है. और जो सेकंड पैराग्राफ हमें इसी प्रकार का ही संदेश देता है. इन ऑल द अबव एग्जाम्पल हमने अपने एग्जाम्पल्स में पढ़ा. द मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट member of other religion community. This act discrimination take place more easily on one religion given officially religionization the state and expenses of religion. Clearly no one could be discriminated against because of the religion are dominated by another religion. In India the state discriminated against religion on the ground of their religion. This paragraph what tell us? This paragraph tell us about like that of. In that chapter we have discusses this type. भेदभाव की इस घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्म के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म की अधिकृत मान्यता प्रदान करती है. भेदभाव तब बढ़ती है. इस पैराग्राफ में हमें क्या बताता है. इस पैराग्राफ में हमें बताता है कि भेदभाव कब बढ़ती है जब एक और ज़्यादा ही बढ़ जाती है जब एक धर्म के लोग राज्य एक ही धर्म की मदद अर्थात उन्हें ही बढ़ावा देती है. इसलिए
ऐसा और होता है, ऐसा ही होता है इसके कारण। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता है। इन द प्रीवियस चैप्टर you read about how the Indian Constitution's fundamental right that protect us against, जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है इंडियन का, वो किस प्रकार से सुरक्षा करता है। The Indian Constitution allow individual that freedom to live their religion, belief and practices the interpreted that Indian Constitution allows Indian Constitution सभी इंडिविजुअल्स को फ्रीडम टू लाइफ से अपने हर धर्म के कार्य को करने के लिए मना नहीं करता है। In keeping with the idea of religious freedom for all, Indian also adopted strategies separating the power of religion power of the state. Secularism refers to the separation of religion from the state. Secularism what refers that is to the separation of religion from the state. Separation of religion धर्म को स्टेट से अलग करता है. Drawing was tell us. This was made by Tanvi Abhilasha and Snehal, class 6th B, सृजन स्कूल दिल्ली. ओके, नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं. व्हाट दैट टेल अस अबाउट व्हाट कैन दिस इज दैट इज रॉन्ग पेज. Oh, that though both are copied. Now that was the next page was a right page. On that chapter what we have to be read? On that chapter we have to read the why is important to separate religion from the India from the state. क्यों ही जब सेपरेशन धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है. दुनिया के तकरीबन सारे देश में, हम इसका शॉर्ट में आपको इसका हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देते हैं. दुनिया के तकरीबन सारे देश में एक से ज़्यादा के साथ लोग साथ साथ रहते हैं. जाहिर सी इसमें हमें बताता है जो फर्स्ट पॉइंट में और शॉर्ट में हम समझते हैं. इससे शॉर्ट में समझना अच्छा होता है, लेकिन लर्न करने के लिए हमें उससे बस मीनिंग जानना होता है. ये नहीं कि कुछ भी लिख दे फालतू में 10 पेज का, लेकिन मीनिंग होगा तो 2 वर्ड का भी आंसर सही होगा. लेकिन तभी भी हम लोग फुल क्लियर करेंगे. और इसमें भी बताता है कि एक जगह पे जो सारे जगह पे किसी भी देश में एक स्थान एक राज्य में जब ज़्यादा लोग होंगे एक धर्म के, जाहिर सी बात है डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव वहाँ होगा. और वह जो मेजॉरिटी में ज़्यादा लोग हैं मेजॉरिटी में और मिनॉरिटी के लोग को परेशान करेंगे. ऐसी जो जबरदस्ती हो सकती है अल्पसंख्यकों के साथ जबरदस्ती हो सकती है. यही कारण है. अल्पसंख्यकों को उनके धर्म अनुसार जीने से रोक सकता है. धर्म के आधार पर किसी भी तरह भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, जो एक लोकतांत्रिक देश किसी भी धर्म के मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है. यही चीज़ होल पैराग्राफ में हमें शॉर्ट में बताइए फुल में बताया गया है कि किसी एक जगह पे जब एक ज़्यादा लोग इकट्ठा होते और उसमें से कुछ ज़्यादा लोग मेजॉरिटी लोग जो अल्पसंख्यकों के साथ मिनॉरिटी लोग के साथ भेदभाव करते हैं. यही भेदभाव भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है. लिहाजा बहुमत लोकतांत्रिक समाज को और राज्य को धर्म अलग, इसीलिए धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है. लोकतांत्रिक समाज को धर्म के राज्य अलग रखने का एक और महत्वपूर्ण कारण है धार्मिक चुनाव के अधिकार रक्षा करनी है. ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज कॉल्ड is that another reason that is important to separate religion from the state is democratic is because we also need reform freedom to that
that tell us about second paragraph tell us about the another reasons from individual to exit the religions embraces another religion to freedom to interpret religions differently. To understand, you have to be taking the untouchability problem, छुआछूत. Hinduism's Hinduism in that in that tell us about then the dominant religion you might have. यहाँ पे हमें बताता है कि टू अंडरस्टैंड द पॉइंट बेटर दैट प्रैक्टिसेस अनटचेबली, हम अनटचेबिलिटी का पॉइंट लेकर अच्छे से समझ सकते हैं. You might feel that you dislike the practices without Hinduism and therefore you want to try and reform it. However, if state power were the hands of those Hinduism and who support untouchability, क्या होगा जब एक जो हिंदुज़्म अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करती हैं वह अगर राज सत्ता में हो तो वह उस सत्ता का गलत इस्तेमाल करेंगे विरुद्ध द अनटचेबिलिटी पीपल, जिसके कारण वह अछूअछूत इसके मानते हैं. ये एक कारण है धर्म को राज्य से अलग रखना. नेक्स्ट पेप इज़ दैट व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म्स. इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? इंडिया का धर्मनिरपेक्षता क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैनेड दैट इंडियन स्टेट बी सेकुलर. इंडिया का स्टेट सेकुलर है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज दैट ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग. अकॉर्डिंग उसके कॉन्स्टिट्यूशंस के कारण कॉन्स्टिट्यूशन से रियलाइज दैट ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग दैट स्टेट का ये जो 3 रूल है दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेटेड अनदर. कोई एक रिलीजन कम्युनिटी किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता. सेकंड है जो पॉइंट है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी. कोई एक पीपल कुछ लोग अपने ही रिलीजन्स के कुछ लोग को डोमिनेट नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टू टेक रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. कि स्टेट कोई भी राज्य पार्टिकुलर रिलीजन्स को और नहीं कहता कि और फ्रीडम नहीं देता है किसी एक पार्टिकुलर को. नेक्स्ट द स्टेटमेंट द इंडियन स्टेट work in various way to prevent the above dominations. First, it uses a strategy of distancing itself from the Indian state is not ruled by a religious group. इंडियन स्टेट एक रिलीजियस ग्रुप के द्वारा नहीं चलाया जाता. इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसिस लाइक लॉज कोर्ट पुलिस स्टेशन गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर सपोज टू डिस्प्ले एज प्रमोट ऑफ एनी. यहाँ पे पुलिस कोर्ट कोई भी एक राज्य एक जात को बढ़ावा नहीं देता. यहाँ पे हम गवर्नमेंट हाई स्कूल है. यहाँ पे इसमें हम आपको हिंदी मीनिंग में फर्स्टली क्लियरली समझा देते हैं. यहाँ पे कुछ बच्चे हैं. अब यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखा है. यहाँ पे एक लड़की जो बोलती है सर से अपने, सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ. एक बहुत ही धार्मिक त्यौहार है अगले महीने बहुत बड़ा, क्या हम स्कूल में मना सकते हैं? सर यहाँ जो बोल रहे हैं आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल. रेखा मैं इससे भयभीत हूँ, यह ऐसा नहीं हो सकता. दैट इज़ गवर्नमेंट स्कूल. यह गवर्नमेंट स्कूल है. गवर्नमेंट स्कूल की पॉलिसी होती है किसी वह एक रिलीजियस दे हैव टू नॉट सपोर्टेड एनी रिलीजियस फेस्टिवल्स. नाउ ये जो लड़का बोलता है आई नेवर थॉट ऑफ इट इज़ वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड द स्कूल. अच्छा कोई बात नहीं, हम इसे आप स्कूल के बाहर मना सकते हैं. एनीवे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी. हम अपने आसपास में मनाने का प्लान करते हैं. इन अबव स्टोरी बोर्ड, यहाँ जो हिंदी मीनिंग दिया गया है अबव स्टोरी बोर्ड में, इससे हमें बताता है कि जो ऊपर दिए गए गवर्नमेंट हाई स्कूल दिस इज़ अ स्टोरी. किसी भी जो हमारा भारत का स्कूल है सरकारी स्कूल किसी एक धर्म की बढ़ावा नहीं देता, वह धर्म की त्योहारें नहीं मनाने की इजाज़त देता है. यह गवर्नमेंट पॉलिसी के विरुद्ध है. अब यही चीज़ प्राइवेट स्कूलों पर लागू नहीं है, वो मना सकते हैं. द सेकेंड वे सेकुलरिज्म्स. अभी दूसरा कारण है दैट
कोई राज्य, किस राज्य की कॉन्स्टिट्यूशन किसी यहाँ पे धार्मिक चीज़ों में, रिलीजियस सेंटिमेंट्स में, धार्मिक मान्यताओं पर कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कहानी स्टोरी में, एक आदमी है, अपने परमजीत दोस्त जो पंजाबी है, वो बोलता है कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो। तो वो बोलता है कि इसमें घबराने की बात नहीं है, मुझसे फाइन नहीं लिया जाएगा। तो वो बोला क्यों फाइन नहीं लिया जाएगा, बिकॉज वो बताता है सिक्स वियरिंग पगड़ी, क्योंकि सिक्स जो सिख होते हैं वह पगड़ी पहनते हैं, उसमें गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स यू टू वियर हेलमेट, इसके कारण गवर्नमेंट हमें हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। दिस वॉज दैट स्टोरी। नाउ दैट नेक्स्ट इज दैट ऑफ in which that same religion upper caste Hindus dominated the member of lower caste. Lower caste, the Indian constitution untouchability. This paragraph about tell us about what can on that whole chapter, that whole paragraph, that ये हमें बताता है कि जैसे कि हिंदूज में ही कुछ अपर लोअर होते हैं, जिसमें अपर लोग लोअर के साथ भेदभाव कर सकते हैं। यह फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, इसमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़ है, पर्सनल लॉ है, लॉ बना है, इसके कानून कोई ऐसा करता है तो उसे कानून सजा देती है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट फॉर रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेट अप अदर। हमें इसमें पैराग्राफ में हमें बताता है कि जैसे कि इंडियन कंट्री में, इंडिया के होल कंट्री में आप कहीं भी एक आदमी किसी भी धर्म कोई भी स्कूल चला सकता है, प्राइवेट स्कूल, उसके लिए कोई मना नहीं है। नाउ द डिफरेंसेस ऑफ दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह है कि एक धर्म दूसरे धर्म में भेद इंटरफेयर नहीं करेगा। यहाँ पे जो प्रेयर के समय बच्चों को दिखाई दे रहा है कि अगर इस स्कूल के प्रेयर से किसी धर्म के लोगों को कोई चोट पहुँचती है, इसलिए वह प्रेयर नहीं कर सकते, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। नाउ दिस इज द इंडियन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकाज चिल्ड्रंस। यूएसए में ऐसा है, ठीक है। एंड दैट कि कोई भी अगर व्यक्ति किसी को उसके धर्म को चोट पहुंचता है तो वह प्रेयर को न भी करेगा तो चलेगा, उसको कोई रोक नहीं है। नाउ दैट वाज द Indian constitution say Hindu religious practices in order to abolish its untouchability. In Indian secularism, the state not strictly to separate religion. हमारे स्टेट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट किसी भी रिलीजन को अलग नहीं करता। इसमें किसी को भी अलग छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों को हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के राज्य धर्म को अलग है, लेकिन धर्म को उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं अगर वह फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है। नेक्स्ट इज दैट पैराग्राफ इज दैट इंडियन भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है, यह मूल्यभूत है। वह फंडामेंटल राइट देता है, जिसके कारण अगर कोई धर्म किसी धर्म के विरुद्ध काम कर रहा हो, मतलब फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध, तो वह उसमें इंटरफेयर कर सकती है, बिकॉज क्योंकि उससे वायलेशन हो सकता है। नाउ दैट इज फरवरी 2004 फरवरी 2004 फ्रेंच passes a law banning students from wearing conspicuous religions in political signs and symbols। हाँ, इसमें क्या बताता है कि जो 2004 में फ्रांस पास कर देता है एक लॉ जो बैन करता है कि स्टूडेंट डोंट वियर इट कॉन्स्पिशियस रिलीजन्स। जैसे कि ये कड़ा मना है किसी रिलीजियस का के स्कूल में पहनना, और इस्लामिक हेड स्क्रैप, ज्यूइश स्कल्प कैप और द लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस, यह चीज़ सब मना है। जैसे लॉ, ये सब चीज़ें मना हो गई उसके 2004 की जो लॉ पास हुआ। इसमें क्या होता है कि वर्कर एंड देयरफॉर हैड टू प्रोवाइडेड व्याज, वह किसी एक धर्म के चिन्ह को अपने साथ नहीं रख सकते स्कूल में। यह 2004 फ्रेंच में पास हुआ।
Now that this is exercises, what is in the different type of religious practices that you have to neighbored. लिस्ट हमें लिस्ट बनाना है कि जो ऑफ क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग. लिस्ट द डिफरेंट बिट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट यू फाइंड इन नेबरहुड. दिस कुड बी डिफरेंट फ्रॉम ए प्रेयर्स वर्शिप और डिफरेंट गॉड्स कैड साइट. हमें ये बनाना है कि एक टेबल बनाना है, जैसे कि जो हम अपने आस पड़ोसी में देखते हैं कि जैसा कि प्रेयर वर्शिप डिफरेंट है हम लोगों से, प्रेयर वर्शिप डिफरेंट गॉड्स केयर्ड साइट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स. इसका म्यूज़िक क्या यूज़ करते हैं, इसका हमें एक लिस्ट बनाना है. नाउ द सेकंड इज विल द गवर्नमेंट इंटरवाइन ऑफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इनफेक्शनली. और हम जो ये दो क्वेश्चन हैं उसको अगले इसको ये जो क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं इसको हम अगले वीडियो में होल आंसर के साथ समझेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द राज क्लासेस RS. सॉरी दैट this was the previous name RS. This is Raj Singh. Please like and subscribe. Thank you for watching. This is the chapter 2 in which they have to be discussed.